Hello my dear children, very good morning, you are most welcome in class 12th accountancy. We are on the topic of issue of debenture. First we have to know the exact meaning of debenture. What is debenture? This one is the written acknowledgement, the debts of a company. Sometimes where the capital or money needed in the company issues its debenture, means raising the loan from the debenture holders by providing them written acknowledgement, and for 5 years or 10 years just redeemable. So the debt of the company, this one is the written acknowledgement. मतलब कंपनी ने बेटा ऋण लिया है और वो ऋण का प्रमाण पत्र ही डिबेंचर ऋण पत्र कहलाता है। इसे हिंदी में ऋण पत्र कहते हैं। यह लिखित सर्टिफिकेट होता है कि कंपनी ने कर्ज लिया है, containing specific rate of interest, फिक्स रेट होता है इंटरेस्ट का, इस पर टाइम भी होता है कि कब इसे रिडीम किया जाएगा। कंपनी इसे कैसे इशू करती है डिबेंचर को, ये देखें। क्वेश्चन नंबर 6 CBSE 2012 आउटसाइड दिल्ली का पेपर है। नवलक्ष्मी लिमिटेड invited application for issuing 3,012% debenture of ₹100 each at a premium of ₹50 per debenture. नवलक्ष्मी लिमिटेड एक कंपनी है जो आपका डिबेंचर इशू करती है, 3,000 डिबेंचर इशू करती है, 12% वाले, और 100 ईच, एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपये है, 50 रुपये उस पर प्रीमियम के साथ। द फुल अमाउंट वाज पेएबल ऑन एप्लीकेशन। पूरा अमाउंट एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर पेएबल है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 4,000 डिबेंचर्स, application for 1,000 debentures were rejected and application money was refunded. अब ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है। क्या हो गया है बेटा? कंपनी 3,000 डिबेंचर है इसके पास, एप्लीकेशन इसे 4,000 का प्राप्त हो गया है। 1,000 के डिबेंचर्स को यह जो है कंपनी रिजेक्ट कर दे रही है और उसका पैसा रिफंड कर दे रही है। डिबेंचर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग अप्लीकेंट्स, और जो बचे हुए अप्लीकेंट्स हैं उनको अलॉटमेंट कर दिया जाता है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द एबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ नवलक्ष्मी लिमिटेड। अगर आप इशू ऑफ शेयर्स पढ़े हैं, इसके पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है, सेम उसी तरह से डिबेंचर की भी एंट्री होती है। वहाँ पर शेयर एप्लीकेशन लिखते थे और यहाँ पर आप डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखेंगे। इंस्टॉलमेंट में नहीं है, सारा पैसा कंपनी जो है एप्लीकेशन मनी के साथ ही और आवंटन कर दे रही है। तो सबसे पहली जो एंट्री होती है वो क्या होगी आपकी? नाउ यू कैन सी द फर्स्ट entry will be passed by receiving the money on application. So applications have been received for the 4,000 debentures, while company has issued only 3,000 debentures. So the first entry will be bank account
बैंक अकाउंट डेबिट to 12% डिवेंचर application and allotment account, application and allotment account, allotment account. Number of debentures, this one is the matter of over subscription, so you have to multiply 4,000 into 150. Because of that, the company issues its debenture on 50 rupees premium. The face value of debenture is 100. So the amount will be received by the company of the 4,000 debentures, 4,000 into 150. So you can write this way, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0 and 15 4 ja 60. 6 lakhs. On application and allotment, the money received by the company on application of issuing the debenture, that will be the amount application money received, 6 lakhs. And next terms and condition that is given in according to the information given in the question. My dear children, over subscription means number of debentures offered by company is more than the number of applications received by the company. Whether the application is more than the number of debenture issued by the company or offered by the company for the public. Remember, यदि जितना कंपनी के पास चाहे शेयर हो चाहे डिबेंचर हो, उससे अधिक का एप्लीकेशन यदि प्राप्त होता है तो उसे ही हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जिस तरह से हम इशू ऑफ शेयर्स में उसे ट्रांसफर करते थे, कहाँ, शेयर कैपिटल में, यहाँ पर डिवेंचर्स अकाउंट में, बिकॉज ऑफ दिस वन इज द लॉन्ग टर्म बोरोइंग, आफ्टर 5 ईयर और 4 इयर्स, 5 साल 10 साल का कंपनी इस तरह का अपना डिवेंचर इशू करती है। तो बेटा दूसरी एंट्री होगी, आप लिखेंगे डिवेंचर 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन and allotment account debit. Whatever the money received by the company, that is 6 lakhs debit, 6 lakhs, and the transfer of the money, how the step taken by the company to transfer the money in debentures account or security premium account or refunding the money to the debenture holders, whatever the debentures rejected by the company, to 12% debenture, to 12% debenture. Remember, the face value will be transferred to the debenture account. Face value, how many shares? 3,000 shares and 3,000 debentures. 3,000 debentures, 3,000 into 100. 100 is the
face value of debentures according to the information given in the questions. Only 3 lakhs. 3 lakhs will be transferred to the debentures account. Rest of the item to security premium. Security premium reserve account. Security premium reserve account. Security premium reserve account 3,000 into the money of the 50 rupees. 50 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम पर कंपनी ले रही है ऐसे 50 का मल्टीप्लाई 3000 में करेंगे। अब आपका अमाउंट हो गया 40 and 5 is 15 1,50,000 ये सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट हो गया। उसके बाद जो 1000 डिवेंचर्स रिजेक्टेड बाय द कंपनी एंड द मनी रिफंडेड बाय द कंपनी टू द डिवेंचर्स होल्डर, सो यू कैन राइट टू बैंक 1000 into 150 is equal to 1,50,000. Now this one is the debentures allotment. That is the entry of issuing the debentures. Issue of debentures, because of that in the question that is given, only the company receiving all the money with the application, so the two entry will be passed only 2 entry will be passed. अब बेटा इसमें क्या ध्यान देना है आपको, एक चीज का ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या है। हिंदी में इसे कायदे से समझें। डिवेंचर का मतलब होता है ऋण पत्र। यह एक लिखित प्रमाण पत्र कंपनी का कर्ज लेने का होता है, जिस पर फिक्स्ड रेट होता है इंटरेस्ट का, जैसे 12% है। रिडीमेबल टाइम पीरियड दिया रहता है, कितने साल के बाद इसे रिडीम किया जाएगा। डिवेंचर कई तरह के होते हैं। मीन्स जस्ट इन फ्यूचर द कंपनी हैज टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ डिवेंचर। कंपनी को इसे, तो यहां पर एक कंपनी है नौ लक्ष्मी करके, जो डिवेंचर इशू कर रही है, डिवेंचर को इशू कर रही है। 3000 डिवेंचर है उसके पास, 3000 डिवेंचर्स। एक का फेस वैल्यू है, एक डिवेंचर का 100 रुपए कीमत है और 50 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू कर रही है। मतलब उस डिवेंचर की कीमत हो जा रही है 150 रुपए। अब जब इशू करेगी कंपनी तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, जो एंट्री जैसे शेयर एप्लीकेशन में आप करते रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। ओवर सब्सक्रिप्शन है, कंपनी के पास 3000 डिवेंचर है और 4000 का एप्लीकेशन मुझे प्राप्त हो गया। मतलब इतना रेपुटेशन कंपनी का बेहतरीन है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 4000 into 150 रुपीज, 100 रुपए आपका फेस वैल्यू का और 50 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो पूरा कंपनी को कितना मिल रहा है, 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए मिल रहे हैं कंपनी के टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 6 लाख रुपए मिल रहा है कंपनी को। अब कंपनी शर्त क्या लगा रही है कि भाई जो 1000 का कंपनी ये डिसाइड कर रही है कि जो 1000 ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, जो अधिक एप्लीकेशन प्राप्त हुआ है,
उस पैसे को वापस कर दिया जाएगा। तो जिस तरह से शेयर कैपिटल में आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, अब उसे क्या करेंगे, डिबेंचर में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं ले रही है, इसमें भी इंस्टॉलमेंट में लिया जाता है। इस क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन है कि एक ही साल एप्लीकेशन पर ही पूरा पैसा ले लिया जाएगा। तो एप्लीकेशन पर पूरा पैसा हो गया आपका, 6 लाख रुपए कंपनी को मिले। अब उसमें से इसे क्या करेंगे, आपने जो दूसरी एंट्री जब डिबेंचर्स में ट्रांसफर करना है तो दूसरी एंट्री आपने किया 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 6 लाख रुपए यहाँ पर देखें आप, 6 लाख रुपए लिया आपने टू 12% डिबेंचर। ध्यान रहे डिबेंचर में वही पैसा जाएगा जो डिबेंचर का फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू है 3000 डिबेंचर ही है कंपनी के पास, 3000 इंटू 100, 3 लाख रुपए आपके डिबेंचर के अकाउंट में चले गए, आपने क्रेडिट कर दिया, 3 लाख की लायबिलिटी हो गई आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम 50 रुपए के हिसाब से आपका 3000 डिबेंचर का सिक्योरिटी प्रीमियम 1,50,000। 1000 डिबेंचर जो रिजेक्ट किए गए हैं तो टू बैंक अकाउंट 1000 इंटू 150, 150 रुपए के हिसाब से वो पैसा वापस कर दिया गया। तो आप देखेंगे 1,50,000। ये इस तरह की एंट्री होगी। being application and allotment money received, being the debentures amount transferred to debentures and security premium and excess money refunded to the debenture holders. This way you can write the narration, my dear. इस तरह से क्वेश्चन का सलूशन बनता है, बहुत आसान होता है। यदि आप शेयर कैपिटल में जानते हैं शेयर कैपिटल में क्या जिस तरह से एंट्री होती है, तो शेयर कैपिटल के स्थान पर आप डिबेंचर सेम चलता है। यदि बच्चे शेयर कैपिटल अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, यदि अच्छी तरह से इसके पहले का वीडियो आपने देखा है, तो आपको इशू ऑफ डिबेंचर में कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अब कहीं कोई परेशानी होगी तो आप मेरे पास अपना प्रॉब्लम भेजेंगे और आपको ये परेशानी दूर होती नजर आएगी। आगे एक क्वेश्चन और है, देखें जरा सा, उसी पैटर्न पर है। अब क्या होता है, एट डिस्काउंट आर लिमिटेड इशूड 8000 13%। तो यहाँ पर एंट्री जो बढ़ जाती है अलॉटमेंट के साथ, यदि इंस्टॉलमेंट में दूसरा वीडियो बनाया जाएगा, मतलब डिबेंचर को प्रीमियम पर भी इशू किया जा सकता है, डिस्काउंट पर भी इशू किया जा सकता है और उसके फेस वैल्यू पर भी इशू किया जा सकता है। जब डिस्काउंट पर डिबेंचर को इशू करेंगे, सपोज दैट 100 रुपीज़ के डिबेंचर हैं और 95 रुपीज़ में आपने उसे इशू किया, तो 5 रुपए का डिस्काउंट हुआ। तो वहाँ पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाता है, उसे डेबिट करके टू डिबेंचर। डिबेंचर में फेस वैल्यू जाएगा, चाहे आप डिस्काउंट पर उसे इशू करें या आप उसे प्रीमियम पर इशू करें, जो भी अमाउंट जाएगा वो फेस वैल्यू ही जाएगा। तो उसकी एंट्री होती है जो आप अक्सर ऑफनली यू कैन फाइंड इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर जो डिस्काउंट पर है तो अलॉटमेंट के साथ ही डिस्काउंट की एंट्री, प्रीमियम की भी एंट्री अलॉटमेंट के साथ ही होती है। और जो पैसा आप पाएंगे वो तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू से डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट लिखा ही जाएगा। जो भी अमाउंट पाएंगे तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट
आप 95 रुपीज़, और उसके बाद जब डिवेंचर उसमें ट्रांसफ़र करेंगे आप, डिवेंचर में वो अलॉटमेंट पर किस्तों में होता है, नहीं तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कर देते एक ही साथ। अगर जो एप्लीकेशन पर आप करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95 रुपीज़, एंड व्हेन यू विल ट्रांसफर 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5 रुपीज़ टू डिवेंचर्स अकाउंट 100 रुपीज़। मतलब फेस वैल्यू ही मेरे बताने का यही मतलब था और कोई चीज़ नहीं था। इतना चीज़ है। अगली वीडियो में आप क्वेश्चन भेजेंगे, उसका वीडियो बनाकर हम भेज देंगे। थैंक यू वेरी मच।